Hello, dear students. I am Dr. Kapil Chaturvedi, and today we will discuss and continue our next lecture with Java interface. In the last class, we discussed about the abstract class, and we see the example of that. And at the time, I told you that the topics interface, inheritance, abstract class, and interface are connected to each other. So, as we discussed after class, and now we are coming on the interface, and we see that what kind of differences between after class and interface. So, let's continue. So, in this lecture, we will cover the topics Java interface definition, basic details about that, interface features, implementing interface, and then we will see that real world example to use the concept of the logic of the concept of implementation of implementing the interface in Java. So the first question is, what is interface? So I told you that the topic after class and interface are connected to each other, and the definition of abstract class was a class contain at least one abstract method, then the class is known as abstract class. So there was at least one abstract method should be in a class. But in case of interface, all the methods will be the abstract class. I think there should be no doubt about abstract method, as we discussed many times. But if a method has no body, then that method is known as abstract method. Okay, so now in general, interface और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपस में बेसिकली बहुत सिमिलर हैं। जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात की थी तो वहां पर हमने ये कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक मेथड जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? जिसकी कोई बॉडी नहीं होती। डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने, अ मेथड हैज नो बॉडी विद जीरो डेफिनेशन, देन दैट मेथड इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो वहां पर क्या था कि यदि एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाई थी। और इंटरफेस में क्या होता है कि यदि सारे के सारे मेथड्स किसी क्लास के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, इट मींस जितने भी मेथड्स वहां पर हैं उनमें से किसी की भी बॉडी नहीं है, उनमें से किसी की भी डेफिनेशन नहीं है, तो वो क्लास सिंपली इंटरफेस कहलाने लगता है। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और इंटरफेस की लगभग सेम है। So the formal definition of interface will be interface is a pure abstract class. तो मैं इसको pure abstract class बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी मेथड जो हैं वो abstract होती हैं। And the another formal definition of interface is the interface in Java is a mechanism to achieve abstraction. There can be only abstract methods in the Java interface. So the definition is similar to our discussion, जहाँ पर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे, वो जो आपका क्लास होगा वो इंटरफेस कहलाएगा। Now what kind of features will be in interface? इंटरफेस की फीचर्स क्या क्या होंगे? तो जो फर्स्ट फीचर है वो बोलता है इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। सो वी इम्प्लीमेंट इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी तो हम उसी मेथड्स को ओवरराइड करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास वहां पर फीचर्स अवेलेबल नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। इंटरफेस में हमारे पास उस मेथड के क्या फीचर्स होंगे ये अवेलेबल नहीं है। अपनी अपनी क्लास की अपनी अपनी फीचर्स होते हैं, अपनी अपनी डेफिनेशन होती है जब वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस की मेथड्स को ओवरराइड करती है। तो सो दैट is used to achieve abstraction. By interface, we can support the functionality of multiple inheritance. ये चीज आपको समझ आएगी आगे जाके जब मैं हम एग्जांपल देखेंगे कि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता
बट इनडायरेक्टली इनकेस जब हम इंटरफेस पढ़ते हैं तो वहां पर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं. द लास्ट फीचर इज इट कैन बी यूज्ड टू अचीव लूज कपलिंग. नाउ that is related to the overriding mechanism. अब बात करते हैं इंटरफेस के सिंटैक्स की, जहां पर आपको लगता है कि इंटरफेस बहुत डिफिकल्ट होता होगा या कैसे करेंगे. तो बहुत सिंपल है. देखिए, इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, interface then interface name, and here we have to write the abstract methods. Declare constant field. You can also define here the constant variables and assign the default values to that, and also you will define the abstract method here. तो यहाँ पर आप abstract method रखेंगे और constant variable भी यहाँ पर रख सकते हैं. तो सिंपल इंटरफेस लिखा, उसका एक इंटरफेस का नाम दिया, और यहाँ पर डेफिनेशन में आपने abstract method बना दिया. एग्जाम्पल देखते हैं. सो हमने कहा था कि इंटरफेस कैसे बनाएंगे. इंटरफेस देन इंटरफेस नेम. सो प्रिंटेबल इज द इंटरफेस, और इंटरफेस में क्या होती है, सारी की सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है. तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है, ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर कोई और मेथड भी नहीं है. तो ये जो क्लास है ये इंटरफेस कहलाएगा, बिकॉज एज वी से दैट द इंटरफेस इज अ प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास. नाउ, और क्लास अनदर हमारे पास एक क्लास है, क्लास ए. और क्लास ए जो है वो क्लास ए प्रिंटेबल इंटरफेस को इनहेरिट करेगी. जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनहेरिट किया करते थे सिंपल क्लास में, उस तरह से हम क्लास ए में इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे. बट यहाँ पर इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो टर्म है इम्प्लीमेंट्स. सो वी आर यूजिंग द टर्म implement. So we will say that class A implements printable. ओके, तो हम इंटरफेस जब भी इनहेरिट करते हैं तो वहां पर एक्सटेंड टर्म यूज नहीं करते, इम्प्लीमेंट्स टर्म यूज करते हैं. हमने लिखा क्लास ए इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल. जब हमने इसको यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया है, इनहेरिट किया है, तो हम यहाँ पर इसकी मेथड जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगी उनको ओवरराइड करेंगे. तो हमने यहाँ पर पब्लिक जो प्रिंट मेथड थी उसको हमने ओवरराइड किया और यहाँ पर उसकी डेफिनेशन डिफाइन की. सिंपली हमने यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया और वहां पर हमने ए का ऑब्जेक्ट बनाकर और उस ऑब्जेक्ट पर प्रिंट मेथड को कॉल कर लिया. तो सिंपल है. हमने इंटरफेस बनाया और इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया क्लास में, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मेथड को ओवरराइड किया, और ओवरराइड करने के बाद हमने उसको ऑब्जेक्ट पे कॉल कर दिया. तो सिंपली डिफरेंट थिंग इज दैट ये हमने यहाँ पर ये इंटरफेस बनाया और यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया. सो द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम विल बी just whenever we compile that program by javac command and run that program with java command, so that will print the output hello. that just a message, ये मैसेज जो है वो कंसोल में प्रिंट कर देगा. ये रूल 1 है इसका. रूल 1 क्या बोलता है कि जब हम इंटरफेस को किसी सिंपल क्लास में इनहेरिट करते हैं तो वो टर्म इनहेरिट ना कहला के इम्प्लीमेंट कहलाता है. तो हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं एक्सटेंड्स की जगह पर इम्प्लीमेंट्स. तो इंटरफेस को सिंपल क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ना कि एक्सटेंड. रूल 2. रूल 2 बोलता है कि यदि आपके पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, मेरे पास एक इंटरफेस है प्रिंटेबल और दूसरा मेरे पास इंटरफेस है मैसेज. सो देयर मे बी मल्टीपल इंटरफेसेस इन अ सिंपल प्रोग्राम. सो हमारे पास एक प्रिंटेबल इंटरफेस है और दूसरा मैसेज इंटरफेस है. सो और मैसेज इंटरफेस ने यदि प्रिंटेबल इंटरफेस को इनहेरिट करना है तो यहाँ पर हम कीवर्ड यूज करेंगे एक्सटेंड्स. प्लीज नोट डाउन दैट टर्म whenever we inherit a interface in a simple class. देखिए, जब हमने एक सिंपल क्लास में एक इंटरफेस को इनहेरिट किया था तो हमने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया था. लेकिन जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करता है. यूज द टर्म एक्सटेंड्स. अब यहाँ पर इसने एक्सटेंड्स टर्म यूज किया तो इसके फीचर्स यहाँ पर आ जाएंगे. इट मीन मैसेज के अंदर प्रिंट मेथड भी आ जाएगी और क्लास ए ने इम्प्लीमेंट किया मैसेज को. तो अभी इसको मैसेज को भी ओवरराइड करना पड़ेगा, एमएसजी मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा और प्रिंट मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली मैसेज इंटरफेस के थ्रू
ये दोनों के दोनों फीचर्स इसमें आ गए क्योंकि ये आपस में इनहेरिटेड है। तो यहाँ पर रूल 2 ये बोलता है कि जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो टर्म एक्सटेंड यूज किया जाता है, लेकिन एक सिंपल क्लास जब इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल क्लास ने जब एक इंटरफेस को इनहेरिट किया तो टर्म यूज किया इम्प्लीमेंट्स, लेकिन जब एक इंटरफेस ने दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट किया तो टर्म यूज किया एक्सटेंड्स। प्लीज नोट डाउन दैट थिंग नाउ। रूल 3। सो रूल 3 क्या बोलता है? मेरे पास एक इंटरफेस है प्रिंटेबल और दूसरा इंटरफेस है मैसेज। इन दोनों में कोई भी इनहेरिटेंस मैंने नहीं किया है। ये इंडिपेंडेंट इंटरफेस है और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट इंटरफेस है। इसके पास प्रिंट मेथड है और उसके पास एमएसजी मेथड है। अब मैं एक सिंपल क्लास में यदि इन दोनों इंटरफेसेस को एक्सटेंड करना चाहूँ, इनहेरिट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? क्लास ए इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये दोनों इंटरफेसेस हैं और मुझे इस क्लास में इन दोनों के फीचर्स चाहिए, मैं कैसे करूंगा? क्लास ए इम्प्लीमेंट्स मैसेज कॉमा प्रिंटेबल। नाउ फोकस ऑन दैट पॉइंट। मैं यहाँ पर मल्टीपल इंटरफेसेस को यहाँ पर इनहेरिट कर रहा हूँ सिंपल क्लास में, जबकि जावा का रूल ये बोलता है वी कैन नॉट इनहेरिट मल्टीपल क्लासेस इन अ सिंगल क्लास। मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस के रूल को जावा फॉलो करने नहीं देता। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जावा ने इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि इसने मैसेज को भी यहाँ पर इनहेरिट किया और प्रिंटेबल को भी किया। ये मल्टीपल हो गया, लेकिन ये कब किया? जब ये इंटरफेसेस। सो मैंने आपको बोला भी था कि जावा इनडायरेक्टली सपोर्ट मल्टीपल इंटरफेस। तो वो इनडायरेक्टली क्या है? वो इंटरफेस के थ्रू या इम्प्लीमेंट्स के थ्रू मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट यहाँ पर कर लेता है। तो यहाँ पर इसने इन दोनों को इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया तो इसको ये दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। इसने प्रिंट को भी ओवरराइड किया और एमएससी को भी ओवरराइड किया, और यहाँ पर इसका आउटपुट आपको मिलेगा जब हम इन दोनों को मेथड्स को ओबीजे के ऊपर कॉल करेंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा हेलो फ्रेंड्स। नाउ हमने अभी जो चीज डिस्कस की उसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं आप। इस डायग्राम से आप उसको बहुत अच्छे से याद कर रख सकते हो। एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करती है, सिंपली जो हमको थ्योरी पता है। लेकिन एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। मतलब एक क्लास में यदि हमको एक इंटरफेस को इनहेरिट करना है तो हम इम्प्लीमेंट्स टर्म यूज करते हैं। लेकिन एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, एक्सटेंड्स करता है। और अब यहाँ पर आपको ये थ्योरी समझ आएगी कि हम यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली इन मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, इन मेथड्स को हम क्या कर रहे हैं? मैसेज को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की नहीं कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं इसकी, प्रिंट की डेफिनेशन यहाँ पर दे रहे हैं, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट जब हम इसको यहाँ पर प्रिंटेबल को मैसेज में हम यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहे हैं ना, केवल इनहेरिट कर रहे हैं। मतलब एज इट इज फीचर्स हम यहाँ पर इसके इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये याद रखने के लिए आपको तो क्या याद रखना है हमको? कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, लेकिन एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। नाउ जैसे कि हम हमारा हर एक लॉजिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक रियल टाइम प्रोग्राम जरूर देखते हैं। यदि हम रियल वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम को इन लॉजिक्स को कैसे यूज करना है। यदि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें या हम इंटरफेस की बात करें या हम इनहेरिटेंस की बात करें या एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रियल वर्ल्ड में जाके एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वहां पर हम इन चीजों को कहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में एक पेरोल जनरेट करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें आपको मैनेजर और क्लर्क की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो ये सिनेरियो हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन क्या बोलता है कि वहां पर कम से कम एक
एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, तो हमने वहां पर बोनस जो मेथड्स थी वो बोनस मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई थी, जो कि 5000 रिटर्न कर रही थी। लेकिन जब हम एग्जाम्पल लेंगे किसका, इंटरफेस का, तो इंटरफेस के एग्जाम्पल में ये बोनस मेथड यहाँ से हट जाएगी। हम इंटरफेस में इस बोनस मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरफेस की सारी मेथड्स कैसी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो हमने यहाँ से बोनस फील्ड को यहाँ से हटा दिया है। तो हमारा सिनेरियो ये है कि हमारे पास मैनेजर है और लेट्स सपोज उसकी बेसिक सैलरी 100 रुपीज है और उसको टी 20% मिल रहा है, एच आर 10%। Now I'll have to now we will have to calculate the gross salary of manager. Also the clerk's basic salary is 100 rupees, TA is 10% and HR is 5%, and we'll have to calculate the gross salary of clerk. तो यहाँ पास एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमको इस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम राइट करना है। तो चलिए प्रोग्राम पे चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने एक यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है जिसमें हमारा जो सिनेरियो था उस सिनेरियो का सॉल्यूशन हम इस प्रोग्राम के थ्रू ड्रॉ करेंगे। तो जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती थी उसमें मैं क्या करता था, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी और वहाँ पर मेथड बनाई थी जिसमें कुछ मेथड आपकी जो थी वो एब्स्ट्रैक्ट थी और एक मेथड यहाँ पर नॉन एब्स्ट्रैक्ट थी। अब मैंने इस फील्ड को यहाँ से हटा दिया क्योंकि मेरी जो इंटरफेस होता है उस इंटरफेस में सारे के सारे मेथड्स होते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी सारे के सारे मेथड होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने इस फील्ड को यहाँ से हटा दिया, हटा दूंगा मैं इंटरफेस में जाके। और मेरी बाकी जो कोडिंग थी वो मैं क्लास मैनेजर में मैं एक्सटेंड करता हूँ ईएमपी को, और मैं क्लर्क क्लास में भी ईएमपी को एक्सटेंड करता हूँ और टीए और एचआर मेथड को ओवरराइड करता हूँ, टीएस का कैलकुलेशन करता हूँ, टीएस को ओवरराइड करके और एक क्लास बनाता हूँ। उस क्लास में जाके मैं मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट को बना कर ऑब्जेक्ट के ऊपर रिस्पेक्टिव मेथड्स कॉल करता हूँ और ये सैलरी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये प्रोग्राम आपको याद होगा और मैंने इसलिए आपको एक बार रिवाइज कर दिया क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आनी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम इंटरफेस पे जाते हैं तो कहाँ पर चेंजेस करने होते हैं। तो ये सिनेरियो हमारा। तो दो चीज़ याद रखनी है कि पहले हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी जिसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट और कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थी, और जब हमने किसी क्लास के अंदर इसको इनहेरिट किया था तो हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया था। नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर इंटरफेस प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस बनाना कैसे बनाएंगे, इंटरफेस और इंटरफेस नाम। तो आवर इंटरफेस नाम इज emp1, so we implement interface emp1 and here we are declaring some abstract methods। देखिए यहाँ पर कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, सारी की सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। टीए एचआरए एंड टीएस, टीए एचआरए और टीएस, टीएस स्टैंड फॉर टोटल सैलरी। तो अभी यहाँ पर हम तीन मेथड्स हमने यहाँ पर बना ली जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्योंकि इनकी डेफिनेशन नहीं है। सिंपल क्लास में हम वहाँ पर एक्सटेंड कर रहे थे किसको, emp1 को, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया emp1 को और यहाँ की कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं है। जो कोडिंग हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में की थी एज इट इज वैसी की वैसी कोडिंग हमने यहाँ पर की है, वही कोडिंग है सारी की सारी। क्योंकि हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, इन मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं। वहां भी हम क्या कर रहे थे, इन मेथड्स को ओवरराइड कर रहे थे। डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह इंटरफेस बनाया है जिसमें कि कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि हमने यहाँ पर एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया है। देन मैंने मेरा जो क्लर्क क्लास है उस क्लर्क क्लास में भी मैंने emp1 को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया इंस्टेड ऑफ एक्सटेंड, क्योंकि ये इंटरफेस है तो मैंने इम्प्लीमेंट्स किया। और सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने पब्लिक आपका पब्लिक टीए, पब्लिक एचआरए एंड पब्लिक टीएस, इन मेथड्स को मैंने ओवरराइड किया और रिस्पेक्टिव मेथड्स मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी उनका टीए, एचआरए और टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए। देखिए 5% रिटर्न कर रहा है ये एचआरए का, ये 10% रिटर्न कर रहा है टीए का। सिमिलरली हमारा ऊपर वाला जो मेथड है जो मैनेजर का है उसमें 20% रिटर्न कर रहा है टीए और 10% रिटर्न कर रहा है एचआरए। यहाँ पर
टोटल सैलरी कैलकुलेट हो रही है, तो टीए एचआरए प्लस सैलरी जो होगी, सैलरी मीन बेसिक सैलरी जो होगी उसका सम करके रिटर्न कर देगा, तो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ वी आर कमिंग ऑन द मेन क्लास, जहाँ पर मैंने INTR इस क्लास को नाम दिया है, और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड मैंने ली, और यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने क्लर्क का। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, केवल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा अरेंज किया है कि फॉर्मेटिंग थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर मैनेजर पर MNG क्या है मैनेजर का ऑब्जेक्ट, उसमें मैंने टीए कॉल किया, बेसिक सैलरी 100 कंसिडर करके पास कर दी। MNG मैनेजर के ऑब्जेक्ट पे HRA कॉल किया मैंने, और सिमिलरली मैंने मैनेजर के ऊपर TS कॉल कर लिया, जहाँ पर टोटल सैलरी प्रिंट हो जाएगी। क्लर्क में CLR ऑब्जेक्ट क्लर्क का ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर टीए कॉल कर लिया, HRA कॉल कर लिया और टोटल सैलरी कॉल कर ली, तो यहाँ पर आपका जो है ये सैलरी कैलकुलेशन होके आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल दो हैं। वो पहला डिफरेंस ये कि हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह इंटरफेस बनाया, और यहाँ पर हमने एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया। तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफरेंस मिला हमको, यहाँ पर हमारे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, सारी की सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर हमने एक्सटेंड की जगह इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज किया है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये राइज होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस अलग अलग क्यों, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। जब हमारे पास सारे के सारे मेथड जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, तो हम इंटरफेस बनाएंगे, और हमारे पास हमारे फ्रेमवर्क में कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, तो हम फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। बेनिफिट क्या है इसको इम्प्लीमेंट करने का, बेनिफिट ये है कि यदि मैं एक टीम लीडर ये फ्रेमवर्क बनाकर अपनी टीम्स को प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर टीम मेंबर्स, एक एक जो टीम है वो मैनेजर की सैलरी पे काम कर रही है, दूसरी टीम क्लर्क की सैलरी पे काम कर रही है, तो टीम मेंबर्स कभी गलती नहीं करेंगे, टीम कभी गलती नहीं करेगी, क्योंकि ये सारे के सारे मेथड्स को हमको यहाँ पर ओवरराइट करना पड़ेगा, टीम्स को ओवरराइट करना पड़ेगा। यदि आपने इम्प्लीमेंट किया है किसी इंटरफेस को और आपने किसी मेथड को ओवरराइट करना छोड़ दिया, तो फिर अब प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, एरर शो होगी कि आपने पर्टिकुलर किसी मेथड को ओवरराइट नहीं किया। तो ये इसका मेजर बेनिफिट है। नाउ इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। सो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं पहले। तो हमने यहाँ पर इसको कंपाइल किया, जावा सी इंटर डॉट जावा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो जैसे प्रोग्राम को रन किया तो आउटपुट मिला मैनेजर टी ए 20 रुपीज उसका टीए है, 10 रुपीज उसका HRA है, और टोटल सैलरी 130। क्योंकि बेसिक सैलरी 100 रुपीज थी, तो 100 का 20% 20 रुपीज हो गया, 10% 10 रुपीज, और टोटल 100 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल्स टू बी 130 इज द ग्रॉस सैलरी। एंड इन केस ऑफ क्लर्क टीए 10% था, तो 10 रुपीज आ गया, 5% हमारा HRA था क्लर्क का, so 10 plus 5 plus 100 equals to be 150 will be the gross salary। तो ये हमारा इंटरफेस हुआ। इस तरह से हमने इंटरफेस को समझा। बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है, लेकिन ये सिंपल और इंटरेस्टिंग तब है जब आप पहले इनहेरिटेंस को समझें, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझें, फिर इंटरफेस को समझें, और फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंसेस समझें, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी और इसको आप कभी भूलोगे नहीं। तो हमने आज के लेक्चर में इंटरफेस का डेफिनेशन पढ़ा। इंटरफेस का डेफिनेशन क्या रहा, द क्लास having all the method as abstract method, or a class is a purely abstract class will be known as interface। It means pure abstract class क्या है, इंटरफेस है। और यहाँ पर हम इंटरफेस को एक सिंपल क्लास में इनहेरिट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। दूसरी बात हमने सीखी, थर्ड थिंग जो हमने सीखी वो ये कि यहाँ पर एक क्लास मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। फोर्थ थिंग विच वी हैव टू रिमेम्बर, जब भी एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो वो एक्सटेंड कीवर्ड यूज करता है। जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करती है,
और जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करता है. सो this is all about interface, and in the next class we will discuss the exception handling and exception handling concept. Thank you.